Thank you. Okay, let's start. Good morning. Okay, so how was yesterday's class? Yesterday we just started the PSR, the foundation of the PSR. Okay, before moving towards the thinker, thoughts. So first we try to understand what is the meaning of the thought. Okay, so today, as usual, let's start our lecture with the quote. ठीक है, कोट का इंपॉर्टेंस आपको पता है ना? यानी कोट ऐसे नहीं लग रहा ना कि यार सर ये क्या पढ़ा रहे हो, कोट क्यों ले रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा ना? Because what is the my purpose behind every quote? That quote first you will get the understanding of how to write a good essay, good approaches. Okay. Second, brainstorming. Third, you have the bunch of quotes. Every session, as we are going to see one quote, that means you have the 80, 100 quotes ready with you with brainstorming, somewhat brainstorming over it. So it can help you in your essay and the ethics. So today's quote is related to is the quote investment in education is the best interest. अरे तो आपको ठीक है, I would suggest just make a separate small notebook. Okay, small notebook of quote. Okay, so that you can carry that notebook every day and you can write the every quote. The purpose behind it that there is no need for the separate preparation of the quotes for the essay. Okay, and in that notebook you can write the analysis of the quote. Okay, multiple dimensions. So who said this? Benjamin Franklin. Okay, so how to write a code in the essay paper? Mostly in the separate lines with the underline. So it will enhance your presentation. Okay, make sure the underline will be straight, otherwise draw it with your scale. Okay, because you have the ample amount of time in the essay paper to write this, or if you have more time, then you can make a box. Okay, separately. So it is based on your choice. Okay, how to write. So tell me, uh, before going to it, so one small announcement for the online people, so they can unmute and speak so that I can listen. Okay, they can unmute your mic. So tell me about the quote, an investment in education pays the best interest. So क्यों कहा होगा ये? सच में ऐसे होता होगा क्या? फिर बताओ क्यों कहा होगा? क्या होता है? फटाक से लेक्चर पे जाना है. चलो. हाँ? Yes, importance of the education. What is the importance? Yes. Definitely great. So this can create the demographic dividends. Other thing, knowledge and the skill, giving knowledge and the skill. Or
Definitely. So it can help us to standard of living or कैसे डिकोड करना है कोड को समझो ये तुम्हारा एसी है ना so in this way they are actually trying to ask essays in the UPSC paper currently philosophical nature so or great so first thing you should first connect it with the different characters so to whom okay first women related ठीक है education to child even old age schools are there which type of education one is the moral and the philosophical which we are going to study in today's class second there can be the physical also बॉडी बिल्डिंग वगैरह वो भी एजुकेशन है ठीक है थियोरेटिकल नॉलेज उसके बाद प्रैक्टिकल ठीक है और क्या हो सकता है सो इन दिस वे यू कैन डिकोड द एजुकेशन ठीक है ये हो गया नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट दिस इज अनदर कीवर्ड ठीक है तो विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट yes investment great social economic infra sorry yes or resources in terms of the human great or yes R&D so for the R&D you require so you can collect every aspect from here and you can decode it and elaborate it okay in your essay is it right so in this way you can write your essay in a comprehensive manner what is the education and which type of education shall we provide which type of investment shall we promote okay okay even in every factor in terms of the R&D what is required first is the infra second skills are required third yes scientific education fourth financial values in R&D yes you can but somewhat less important but yes it is there is a need of the values yes investment in terms of the economic so economic investment और कैसे सोचोगे how you can decode so collaboration with other countries yes or so collaboration PPP projects try to think from the base okay and with different institution then you can actually decode a complete topic in a comprehensive manner here we are forgetting so ask question to every topic or the every aspect टेंशन नहीं घ्यायची अरे आरामात चालू दे तुझं ठीक आहे so ask the question what type of R&D okay who is going to do who is going to perform okay where
we are going to promote how, okay, why, ठीक है, ओके, देन ये हो गया, उसके बाद when, so report, so why, because everyone is moving towards R&D, this is the need of the hour, need of the present time. So in this way, that is why, how, as we saw in terms of investment, development of the skills, knowledge, वगैरह. Okay, so in this how you actually forgot, ठीक है, there is a need of the patent laws. Here we actually connected the government. Okay, then the WTO, there is a dispute, IPR related dispute, you forgot it. Okay, then in international institutions, we can connect it with the WTO. Okay, there are the disputes of the WTO. There is a IPR related discussions are going on. Okay, so there is a need in the reform. So most of the time, forget this aspect. Is it true? Okay, we write whole this, but this is also one of the aspects in the R&D. So if you write the essay in a comprehensive manner, if only you can fetch 5 marks of everything. Okay, 4 dimensions. So in this way, you can have the dimensions, comprehensivity, the diversity in your essay. Okay, as we saw, the government, there is a need of patent laws. So there is a need for the periodic updation or the ancient laws. ठीक है, then government schemes. Okay. As we talk about the education for the R&D, so this education need to promote from the childhood. How? Yes, but what is lacking in India? Why there is a, so this also you can actually mention. So mostly what we find, another aspect, majoritarily we find the R&D. Is it true? Where do we find most industries? So ISRO वगैरह सब इधर. So they need to develop the culture. So what we are going to connect it with the ethics, that is GS4. Okay, what is the need? Culture. For the culture, our parents do promote. Do parents promote the R&D? Do they favor to go in this stream, और जल्दी से जॉब लो और शुरू हो जाओ कमाई के लिए? यही सबके घर में होता है ना, जल्दी से एक बेसिक एजुकेशन लो, जॉब लो, उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेल्फ, सक्सेस का पता नहीं, फेल भी हो सकते हो, ठीक है, सालों साल यही चलते जाता है. और माइंडसेट क्या है कि ज्यादा पढ़ने से आदमी पागल हो जाता है, यही है ना माइंडसेट. सो दिस इज एक्चुअली द नॉर्म्स इन द सोसाइटी, ठीक है, जनरली वी एक्चुअली सी दिस. तो ये होता है, सो ये भी डेवलप करना पड़ेगा. सो इन दिस वे a complete a particular topic you can elaborate through this way. Okay, तो आगे जाए, समझे इसको? ठीक है, so I suggested that you should make a small notebook of the notes so that you can write the every note, every quote in that notebook, and this type of elaboration in a short points. Okay, then it will be helpful to you in your essays. So
let's move on for the today's topic. So before that, let's quickly revise the yesterday's lecture. Okay. So where we were the yesterday about the political thought. So क्या होता है political thought? Yesterday political thought क्या होता है? किस चीज के लिए होता है political thought? They are time and space oriented political thought. पूरे स्टेट के बारे में एक आइडिया, किसका आइडिया? थिंकर का आइडिया. ठीक है. थिंकर क्या करता है? पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल थॉट में क्या करता है? एक्सप्लेन. भूल गए क्या करगा? भूल गए? काल कोण कोण होतं? ऑनलाईन ऑफलाईन? ऑफलाईन तर तुम्ही होता, ऑनलाईन होता. ऑनलाईन होतात का? ओके. ऑनलाईन. ओके ठीक है. ठीक है. तो पॉलिटिकल थॉट क्या? सिस्टम एक्सप्लेन करता है, कंप्लीट पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है. एक्सप्लेन बाय द थिंकर. सो ये पढ़ा था. दीज आर द रिलेटेड विद द टाइम एंड द स्पेस, एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट. ओके. देन मॉडर्न, एंशिएंट में वेस्टर्न. ठीक है. उसके बाद देखा था होल पॉलिटिकल साइंस किस पे बेस है? स्टेट पे. किसका स्टेटमेंट? ये सब अभी सिलेबस चालू हो गया, अभी मत भूलो. दोबारा अगर पढ़ाई करना हो तो घर पे जाके फिर से रिवाइज करना पड़ेगा. ठीक है. सिर्फ कॉपी में होने से नहीं जमेगा. मुझे लगता है कॉपी में कुछ हो भी ना, सब कहाँ पे हो? दिमाग में. लिखना है ना. ठीक है. तो कॉपी में होने से क्या होगा? देख के थोड़ी लिखना है. ठीक है. तो बताओ स्टेट किसका था? क्योंकि दैट स्टेटमेंट इज द इंट्रोडक्शन. गार्नर का एक स्टेटमेंट था, क्या था? स्टेट. यस. तो गार्नर का स्टेटमेंट. So this is actually the introduction, begins and ends. Both the things. Okay. ये दोनों का इंट्रोडक्शन है. अगर तुमको कुछ सूझा नहीं, ठीक है, दिमाग में आया नहीं कभी, तो स्टेट की थ्योरी जब लिखोगे, स्टेट का सेपरेटली अपने इसमें सिलेबस में है ना, स्टेट की थ्योरी अगर जब लिखना है, कुछ भी नहीं आया, दिस स्टेटमेंट इज गुड. ठीक है. पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज द गुड फॉर यू. तो ये याद रखना. और ये हो गया इंट्रोडक्शन. और किसका स्टेटमेंट देखा था? गैस क्या था? ग्रेट स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. सेकंड स्टेटमेंट. So not only political science begins with the state, but also and why state is important? Because state is the march of God on earth. This is the actual introduction. ठीक है. ये आपने ऐसे रनिंग नोट में लिख लेना, ये नहीं है. ठीक है. ये अभी मेरे दिमाग में ऐसा आया तो मैं बता रहा हूँ. ठीक है. ये पीपीटी में भी नहीं होगा, सिर्फ स्टेटमेंट होंगे. ठीक है. तो ये आप इसको नोट कर लेना. So these two statements actually your introduction for the different questions related to the political science and the state. Next, so how state changed, that also we saw in the yesterday's class. What was the ancient state given by the philosopher? Ancient state related with the क्या कैसे था ancient state? Yes, it was first it emerged as a city state. So in the next statement it is derived from the word police. ठीक है. So ये आपका नेक्स्ट हो गया. ठीक है. उसके बाद कैसा था? दिस इज द थर्ड लाइन इन योर आंसर. उसके बाद एंशिएंट स्टेट कैसे थे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंशिएंट स्टेट एंड द
मॉडर्न स्टेट, इंडिपेंडेंट नहीं, और एक बताया था इन द एंशिएंट स्टेट इज अ natural thing, in the modern period promoted by the ancient Socrates, Plato, Aristotle. In the modern period, how state is actually man-made. It is a creation of the man. This is the next statement. So in the ancient period, state is a natural, but in the modern, it is a man-made thing. So this is a complete difference between the ancient and the modern thought. So these are the first 3-4 lines of your answer related to the political science and related to the state. तो कल के क्लास में अपन ने ये सब कुछ देखा था. तो आज ठीक है, आगे चलते हैं. ये देखा पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में, ठीक है. तो पॉलिटिकल थियरी नेक्स्ट पार्ट, ठीक है. क्या है पॉलिटिकल थियरी? क्या होगी पॉलिटिकल थियरी? थियरी क्या रहती है? थियरी पट्टे पढ़ाते हो तुम इसको, वो भी थियरी रहती है. पट्टे पढ़ाते हो ना, कुछ पता नहीं हो तो यही से उधर से जोड़ देते हो किसी को कुछ समझाने के लिए, ठीक है. तो क्या रहती है फिर थियरी? यस, व्हाट थ्रू थियरी यू आर एक्चुअली explaining something. Okay, so this is for the explanation purpose, ठीक है. So for that explanation we uses the different methodologies. Which type of methodology? Yes, that is from the syllabus point of view. जनरल बताओ, जनरल. ये तो सही है, बेस्ट है जो आपने कहा था, वो तो बेस्ट ही है. जनरल में कैसे मेथोडोलॉजी यूज करते हो तुम? किसी को कुछ पढ़ाना हो, समझाना हो, क्या देते हो? रेफरेंसेस, ग्रेट. ठीक है. अगर किसी को कुछ चीज समझाना हो तो बेस्ट वे क्या है? उसको एक आध एग्जाम्पल दे दो, ठीक है. यार एक ऑफिसर है जिनका 1 रैंक आया, उन्होंने क्या किया था कि ऐसे ऐसे पॉइंट निकाले, तो अपने को क्या करना चाहिए? ऐसे पॉइंट निकालने चाहिए. एक सर आए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे 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 डिकोड करना है. यही अगर खुद के मन से बताया तो, अगर मैं मेरे किसी दोस्त को मिल गया, ठीक है, और मैंने उसको बताया कि ऐसे को ऐसे ऐसे डिकोड करना, वो क्या बोलेगा कि सारा कुछ तुझे ही समझ आ गया. लेकिन मैंने वही चीज अलग तरीके से बताई. किस तरीके से? कि रैंक 15, 13, 14 जो भी हो, उनको ऐसे में कितने मार्क्स है? 176. उन्होंने क्या किया था ऐसे में कि इस तरीके से ऐसे डिकोड किया था. WH क्वेश्चन ऐसे पूछे थे उस टॉपिक को. तो क्या होगा? सामने का भरोसा बढ़ जाएगा, उसको लगेगा अभी ये बात सही है. सो दिस इज द मेथड. ये क्या होती है? खुद की थियरी, ठीक है. थियरी तो खुद की है, लेकिन बता किससे है? कुछ रेफरेंस लेके, एग्जाम्पल लेके, तभी सामने वालों को क्या, उसको भरोसा होगा. सो यस, इट इज अ एक्सप्लेनेटरी टूल. थियरी इज अ एक्सप्लेनेटरी टूल, ठीक है. और द मेथड, मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन सम फिनोमिना, ठीक है. किस टाइप का फिनोमिना एक्सप्लेन करते हैं पॉलिटिकल थियरी में अपन? यस, पॉलिटिकल फिनोमिना जस्ट लाइक तो ये क्या होगी? दिस इज अ methodology to explain political phenomena. तो कौन से रहते हैं पॉलिटिकल फिनोमेना? क्या रहेगा? क्या क्या एक्सप्लेन करेगा? थिंकर, ट्रू थ्योरी, जस्टिस, लिबर्टी, यस, इक्वालिटी. स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करेगा. देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द स्टेट. स्टेट की डिफरेंट थ्योरी. और क्या होगा? स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? किससे की सारी सबसे ज्यादा थ्योरीज रहती है? Which is the highest important organization in the state? Government. So there are the different type of government. So theory of
गवर्नमेंट, तो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें क्या होगी, थ्रू द पॉलिटिकल थियरी एक्सप्लेन। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द पॉलिटिकल थियरी, सो इट इज अ मेथोडोलॉजी टू एक्सप्लेन द पॉलिटिकल फिनोमिना। ठीक है, तो अभी थ्योरी में टाइप्स कौन कौन से, थ्योरी पता हो गया, थॉट पता चल गया, तो थॉट्स और थ्योरी में क्या डिफरेंस हो सकता है? थॉट वर्सेस थ्योरी, क्या डिफरेंस हो सकता है थॉट और थ्योरी में? रिसर्च करके थ्योरी और एक्सपीरियंस से बताइए। ग्रेट, थॉट वो भी एक्सपीरियंस ही बताया वैसे, लेकिन द फर्स्ट मेजर डिफरेंस इज एज वी सेड इट इज अ टाइम एंड स्पेस। सो ऐसे भी कर सकते हैं इसको लिखते समय। सो दिस इज अ पॉलिटिकल थॉट, और ये क्या है, पॉलिटिकल थियरी। तो इन दिस वे यू कैन एक्चुअली एक्सप्लेन इट। पॉलिटिकल थॉट क्या है, सारे इंस्टीट्यूशन का थॉट, पूरे स्टेट में जो भी कुछ होगा, ठीक है, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली क्या आता है, किसमें आता है, इन द पॉलिटिकल थॉट। थ्योरी में क्या आएगा, जैसे अपन ने देखा जस्टिस, लिबर्टी वगैरह, गवर्नमेंट के बारे में। सो इट कैन बी द सबसेट, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट। सो दिस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, पहले किस टाइप की गवर्नमेंट थी, अभी किस टाइप की गवर्नमेंट चाहिए। जैसे चर्चिल का स्टेटमेंट कल देखा था, तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्नमेंट बट टिल इमर्जेंस ऑफ द न्यू वन। ठीक है, ये क्या हो गया, उन्होंने थ्योरी दी थी डेमोक्रेसी के बारे में। समझ में आ रहा है, कोई डाउट? तो अभी पॉलिटिकल थ्योरी, वैसे पॉलिटिकल थ्योरी अलग से टॉपिक ही है सिलेबस में, उसको तो बाद में लेंगे। तो अभी जनरल इंट्रोडक्शन जैसे जैसे थिंकर पे जाने के पहले। तो पॉलिटिकल थ्योरी मेजॉरिटीली दो टाइप से, टू टाइप। वन इज द फिलोसॉफिकल बेस्ड, सेकंड साइंटिफिक बेस्ड। तो क्या डिफरेंस रहेगा, व्हाट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? यस, वैल्यू बेस्ड, कौन सी वैल्यू बेस्ड रहेगी, विच थ्योरी इज द वैल्यू बेस्ड थ्योरी? ग्रेट, टेन्शन नाही घ्यायचं, बिंदास बोलायचं, चुकलं काय फरक पडणार आहे, आपला क्लास आपल्या तिथे एवढंच आहे। वैल्यू बेस्ड, ठीक है, फिर ये कैसे रहेंगी, फैक्ट बेस्ड। तो दिस इज एक्चुअली डिफरेंस, ठीक है। इसमें क्या एक्सप्लेन कर सकेंगे, जस्टिस वगैरह था जैसी चीजें, ठीक है। ये कहाँ पे अपने को बेस्ट एग्जांपल ऑफ द साइंटिफिक थ्योरी, इंस्टीट्यूशंस वगैरह उसमें है। और साइंटिफिक थ्योरी में क्या क्या होगा, एक फैक्ट रहेगा, तो आप क्या करोगे, फैक्ट के बेसिस पे कुछ तो भी एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट के बाद उसको कहीं तो भी अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद क्या करोगे, रिजल्ट देखोगे, ठीक है। रिजल्ट डिजायर्ड आया तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, इससे फिर से एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर से अप्लाई, फिर से रिजल्ट, इससे क्या होगा, अल्टीमेटली एक मॉडल बनेगा फाइनल। तो ये चीजें साइंटिफिक थ्योरी में इन द प्रेजेंट टाइम वी आर अप्लाइंग इट फॉर द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल 2014 एनडीए कैंपेन, बिहेवियर एनालिसिस हुआ है नहीं, बेस्ट एनालिसिस, हु इज द बेस्ट एनालिस्ट, बेस्ट एग्जांपल, ग्रेट, नॉट द बेस्ट एनालिस्ट बट बेस्ट एग्जांपल इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, पीके, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बिहेवियरल एनालिसिस किया, ठीक है, कि ये एरिया में ये सारी चीजें, ठीक है, डोमिनेंट है, तो इसके रिलेटेड स्कीम्स लाई जाए, वैसे स्लोगन, ठीक है। सो किसको टारगेट करना है, किसको नहीं करना है, सेम थिंग वाया फेसबुक किसने की,
Trump election, highest use of the Facebook, change of your behavior and mindset. इन्फ्लुएंस किया है नहीं किया? ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ से हो रही है? थ्रू द साइंटिफिक थियरी। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल एनालिस्ट, के पास सिलेक्शन दिया तो जीत नहीं सकते, ऐसे हो नहीं रहा है ना। स्ट्रेटेजिस्ट, एनालिस्ट, तो वो क्या कर रहे हैं? वोटर्स का बिहेवियर एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो वोटर को क्या चाहिए, क्या अपील होगा, ठीक है, ये सारी चीजें। सो ये हो गई पॉलिटिकल थियरी। So this is the type. One is the scientific methodology which is based on the verification, facts, proofs वगैरह, उसको फिर क्या करेंगे? अप्लाई करने के बाद कुछ तो भी एक ओपिनियन पोस्ट में अपन उसको यूज करते हैं। द सेकंड थिंग इज रिलेटेड विद द फिलोसॉफिकल, ठीक है। सेकंड इज द फिलोसॉफिकल मेथोडोलॉजी, ठीक है। फिलोसॉफी में क्या बेस्ड है? वैल्यू बेस्ड वगैरह, ठीक है। उससे क्या चीजें जस्टिस वगैरह वो जो है उसको अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। ये तो सारी होगी चीज। आगे चलते हैं। हाँ, हे कम्प्लीट तुमचंच, हे पूर्ण पीपीटी वगैरे सगळे तुमचे माझ्या नोट्स पण। ओके, चालेल ना? की हँड रिटन पाहिजे, म्हणजे डिक्टेशन पाहिजे? तो माझा विचार आहे की, सो माय थॉट इज टू अंडरस्टँड यू, ओके। मेजर फोकस इज ऑन द अंडरस्टँडिंग rather than going for the dictation and writing. So this is actually available in the market, okay. अगर तुम्हारे दिमाग में सब कुछ हो तो मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है। तो हैंड रिटन नोट जो मेरे है, ठीक है, वो प्रोवाइड करूंगा। ये पीपीटी पूरा आपका, ठीक है, चलेगा ना? अगर और कुछ चाहिए होगा आपको तो आप बताओ, ठीक है। मुझे जैसे अपन ने रिवीजन किया, तो अगर मैं डिक्टेशन करते बैठूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 15-20 मिनट पढ़ाना पड़ेगा। बाकी पूरा टाइम कहाँ पे देना पड़ेगा? डिक्टेशन में, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा वक्त लगता है ना, ठीक है। लेकिन मेरा कहना यह है कि पूरा टाइम देने से पहले मैं उसको आधा घंटा तो रिवीजन को दे सकता हूँ ना, ऑफ द लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, लास्ट 2 क्लास, नेक्स्ट क्लास। इन दिस वे आपको फिर पढ़ना ही नहीं ना घर पे जाके, क्यों रिवाइज करना? ज्यादा रिवीजन अगर यहीं पे हो रहा है और दिमाग में भी है तो ज्यादा पढ़ने की और रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ अब जो रनिंग नोट्स है, जैसे मैंने बताया कि स्टेट के क्वेश्चन में या पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन में ये 4-5 चीजें आप इंट्रोडक्शन और बॉडी की शुरुआत में लिख सकते हो, तो ये सारी चीजें इसमें नहीं है, क्योंकि ये भी अभी अभी आया कराटे में, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि उतना लिख लीजिएगा, बाकी तो फिर ऐसे ही है, चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मूव। हो गया पॉलिटिकल थियरी, ठीक है। तो this is actually difference between philosophical and the scientific. This is completely a scientific one. So in this way you can actually represent. In the philosophical basis, we do not actually experiment. ठीक है, एक बार दे दिया तो दे दिया, ठीक है, थियरी वगैरह। साइंटिफिक में क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर नहीं हुआ, माइक अभी किसका ऑन है? मानसी, थैंक यू। So in this way we actually apply the things in the scientific methodology, ठीक है, through experimentation, through application, and then we got the actual model. But in the philosophical basis we directly apply it, we do not actually experiment, ठीक है। So ये सारा डिफरेंस है। उसके बाद, ठीक है, अभी सबसे बड़ा डिबेट पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अभी मुझे बताओ, ये आर्ट है या साइंस है? क्या है पॉलिटिकल साइंस? बोले तो ये वर्ड से ही टेंशन है, ये ठीक था, ये क्यों आ गया यहाँ पे? ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है ना, ठीक है। सोशियोलॉजिकल साइंस ऐसा कुछ पढ़ा?
सोशियोलॉजिकल साइंस, ऐसा कुछ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल में साइंस कहाँ से आ गया? साइंस क्यों है? आर्ट है सिर्फ, ये तो हाँ थेरी मध्ये काय मग? फैक्ट, ग्रेट। ये वर्ड्स आ गया जो अपन ने साइंटिफिक थ्योरी देखी, इसके वजह से। ना ये कंप्लीट आर्ट है और ना ही कंप्लीट है साइंस है। साइंस कैसे नहीं है? पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जैसे इस तरीके से साइंस नहीं हो, ठीक है। कोर साइंस की जैसे नहीं है, ठीक है। इट इज डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। क्या है डिफरेंस? इनका क्या हो सकता है? लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट, इसका एक्सपेरिमेंट हो सकता है लेबोरेटरी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो उसका फैक्ट्स वगैरह जो भी रिजल्ट आ गया, जो मॉडल है, ये कंप्लीटली रेप्लिकेट हो सकता है, ये कभी चेंज होगा, ठीक है। मोमेंटम का लॉ चेंज होगा, ग्रेविटेशन का लॉ चेंज होगा, सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज हो सकता है कंप्लीटली। जो बिहेवियरल एनालिसिस, ठीक है, जो बिहेवियरल एनालिसिस यूपी में अप्लाई होगा, क्या वही एनालिसिस केरल में होगा? नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे फूड, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे स्लोगन चलते हैं, सही है ना, क्योंकि इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे क्या चलता है? R&D में ले लिए, डायस्पोरा, उनके राइट्स, मोर लिबर्टी के बारे में, क्योंकि ये सारी चीजें तो इनके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो कंप्लीटली जैसे कि जैसे अप्लाई नहीं कर सकते अपन उसको। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट द कंप्लीट साइंस, बट यस इट इज अ साइंस। क्यों? क्योंकि जैसे साइंटिफिक थ्योरी में देखा अपन ने कि उसको कहीं ना कहीं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ तो भी एक मॉडल बना, ठीक है। देयर वी फाइंड अ पर्टिकुलर मॉडल, दैट मॉडल we actually applied for a state like state election, okay, to analyze the behavior of people, even to analyze the behavior and reactions of nations। कैसे? ये अभी का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इसको कनेक्ट करंट के बारे में? यस यस, वन इज द रशियाज रिएक्शन, ये एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। इंडिया का रिएक्शन, इंडिया कैसा स्टैंड लेगा, क्या एनालाइज किया जा सकता है? किया जा सकता है ना। एट द सेम टाइम द ऑनगोइंग इशू ऑफ द ताइवान, चाइना का स्टेप एनालाइज किया जा सकता है। तो इन दिस वे वी कैन एनालाइज, ओके, द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर नेशन, ऑफ पर्टिकुलर लीडर, ठीक है। मोदी जी के बारे में भी एनालिसिस हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि दे कैन टेक द एक्शन, ठीक है। शास्त्री जी के टाइम अलग था, नेहरू जी के टाइम अलग था। सो पर्सन ओरिएंटेड भी है, स्टेट और नेशन ओरिएंटेड भी है, ठीक है। तो इस टाइप से एनालिसिस हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रू हो सकता है बिकॉज इट इज अ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द circumstances, prevailing circumstances for that time. So that's why we cannot say political science is a complete science, but yes, it is true that it is, there are the certain aspects in the political science of the scientific aspect. Yes. आपने यूपी और केरला के एग्जाम्पल दिए, तो सर उसमें मतलब अभी ये वैसे पॉजिटिव दिखते हैं जैसे फूड हेल्थ वगैरह, तो वैसे सर रोल ऑफ कास्ट और Yes. आइडेंटिटी होते हैं वो भी है ना। So role of caste, who actually analyze
source particular, ठीक है, analysis of the source particular based on the cast, ठीक है। वो स्टेटमेंट क्या है, we do not vote, we do not cast our vote but vote our cast। तो ये चीजें यूपी में लागू करती है, ठीक है। यूपी में क्या, पूरे हिंदुस्तान में, ऐसे नहीं यूपी में अलग से, पूरे हिंदुस्तान में। द और दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर GS2, GS4 and GS1। what, the relevance of caste increasing, so in this way you can connect in the society also, ठीक है। so it is the relevance of the class declining, so no, in the politics caste based, okay, caste based candidates, ठीक है। उसके बाद कास्ट बेस्ड मिनिस्टर्स रिप्रेजेंटेशन वगैरह है नहीं है, ठीक है। इवन पॉलिसीज, कुछ गवर्नमेंट के स्कीम फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। उसके बाद में फ्रीबीज का जमाना है अभी तो पर्टिकुलर एरिया की क्या क्या जरूरत है बेस्ड ऑन देयर, सही है। तो ये आप चीजें GS 1 2 3 में और GS 1 2 और 4 में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखो, एरिस्टोटल कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस एज अ मास्टर साइंस, ठीक है। और मॉडर्न थिंकर्स ने उसको साइंस कहा है। तो क्यों कहा है साइंस, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक स्टडी है। वी आर डूइंग द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर और एनालिसिस वगैरह जो सारी है। इवन फॉर द नेशन वी आर डूइंग द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेशन, सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। जैसे देखा कि बिहेवियर का वगैरह एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन प्रिंसिपल्स वगैरह, उसके बाद कंक्लूजन, सो वी कैन थ्रू दैट कंक्लूजन वी आर यूटिलाइजिंग इन योर अवर जनरल इलेक्शंस इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी फॉर्मेशन स्कीम्स, ठीक है, स्लोगनरिंग, ये सारी चीजें अपन कर रहे हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट साइंस तो है नहीं। सो ये देख लिया, मेजोरिटी इट इज एन आर्ट, ठीक है, साइंस नहीं है बस, यस देयर आर साइंस। तो ये सारी चीजें फिर आपको तो याद रखना है, ठीक है। सो ये आप अलग से लिख लेना। एक मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, एक अलग से डायरी करेगा, ठीक है, मेंटेन अ सेपरेट डायरी ओनली फॉर द थिंकर, ठीक है। ये तो सारी चीजें आपके पास है ही, लेकिन जो लास्ट में एग्जाम है, ठीक है, ऐसे समझो कि जो भी आपको टाइम टेबल बनाना है एग्जाम का, वो कहाँ से बनना होगा, कहाँ से बनाते हो आप टाइम टेबल, कैसे बनाते हो टाइम टेबल किसी एग्जाम के बारे में, एग्जाम की प्रिपरेशन का टाइम टेबल, हाँ, ठीक है। समझो आज की तारीख क्या है 10, ठीक है, तो आपको एग्जाम, आपकी एग्जाम है 25 को, कैसे बनाओगे, उल्टा, ठीक है। मेजोरिटीली यू शुड मेक अ टाइम टेबल इन अ रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो एग्जाम कब है, समझो एक्स डे को एग्जाम है, तो मुझे एग्जाम के दिन जो सुबह 2 घंटे मिलेंगे उसमें क्या पढ़ना है। उसके बाद में एग्जाम के पहले जो मुझे 5 दिन छुट्टी होती है उसमें मैं मुझे क्या पढ़ना है। उसके बाद में जो मैं रिवीजन करने वाला हूँ मेंस के लिए, जो मुझे 1 महीने का रिवीजन मिलेगा, 1 महीने में मुझे क्या पढ़ना है। तो इन दिस वे, तो ये जो है ये 2 घंटे और ये 5 दिन में से 4 गए, जो लास्ट वाला दिन आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि थ्योरी आप सबको पता रहेगी, एनालिसिस सबको पता रहेगा, ठीक है। अगर मेंस दे रहे हो तो उतना सारा तो तुमने पढ़ा ही है ऑप्शनल, तो लास्ट में याद क्या नहीं रहता कि किसका स्टेटमेंट क्या है, किसने क्या बोला, ठीक है, हु सेड व्हाट, ये सारी चीजें। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू एक्चुअली नोट इन अ सेपरेट नोटबुक, ठीक है। एंड इन दैट नोटबुक जस्ट
write about thinker and his statement. Okay, and revise it just before going for the exam for a half an hour, 1 hour. तो इससे क्या होगा, there can be the no confusion at the time of the exam. तो ये बेस रहेगा. तो उसमें क्या करना, सिर्फ whenever we are going to learn a particular topic, ठीक है, जैसे स्टेट के बारे में 3-4 स्टेटमेंट शुरुआत में दिए थे मैंने. सो वो स्टेट की जब जो रहेगा स्टेट की थ्योरी उसमें लिख लेना. ठीक है, these are the introduction, this can be the introduction, this can utilize in the body part, this can be the conclusion of a particular thinker statement. ठीक है, तो इसके लिए सेपरेट से नोटबुक मैं आपको कल लेके आऊंगा, जैसे मैंने बनाई है. सो आई मेड अ सेपरेट नोटबुक फॉर each part. Yes, topic wise. First, there is a separation in terms of the topic as per the syllabus, because the questions are going to ask as per the syllabus point of view. Okay, so separate notebook for the as per the syllabus point of view. Second notebook, I made a 2 different notebook. One for the paper 1, one for the paper 2. In the first paper, section A complete. In the second paper, relation wise. So in the India-China relations, I have to write these 10 thoughts. Okay, in the India-Russia relation, I have to write these 10 thoughts. ठीक है, तो इसकी जैसे मैंने फिर उसको सेपरेट करके रखा था, ताकि फिर जो मुझे पहले लास्ट 1 घंटा पढ़ना है, जो मुझे रिवाइज करना है, कल पेपर है तो आज मुझे कुछ तो भी रिवाइज करना है. पहले लैंग्वेज का पेपर होगा ना, उसके बाद तुमको 3-4 घंटे मिलेंगे. शाम में 5 बजे आने के बाद 6 बजे अगर तुम बैठने पढ़ते हो, ठीक है, 10 बजे तक पढ़ोगे 4 घंटे, तो मुझे 4 घंटे में क्या रिवाइज करना है. सो आई हैव टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स. हाँ, येस येस. सो इंडिया चायना जर का मी रिलेशन घेतलं, सो इन द इंडिया चायना रिलेशन्स आय एम गोइंग टू राईट द सुहासिनी हैदरजी स्टेटमेंट. ठीक है, सुहास पर्चिकरजी, सी राजा मोहन. ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट, और प्रताप भानु मेहता स्टेटमेंट. ठीक है, हर्षमन स्टेटमेंट, और एनी अदर पास्ट स्टेटमेंट विच आर एक्चुअली रिलेवेंट. ठीक है, इन दिस टाइम. येस, डेफिनेटली काही असे स्टेटमेंट असतात ना, ते फिट होतातच. सो दे आर इट कॅन बी युटिलाइज at anywhere, just like the statement of the Karnar, political science begins and ends with the state. So it can be utilized at a multiple sphere. Okay, at a multiple topic. So एक notes वैसे बनाना. The second type of notes, make us very short and crisp notes, only the bullet points and the keywords. Okay, only the keywords. Through keywords there is a elaboration. So ये नोट्स इतने बार रिवाइज होनी चाहिए कि एक अगर वर्ड भी देख लिया तो पूरा इलेबोरेट आपको करते आना चाहिए. एक थिंकरसाठी आपण बनवतो. येस तर दुसरी नोटबुक आपण जी बनवतोय कीवर्ड्स, येस मग त्याच्यामध्ये ते शॉर्ट नोट्स आणि बाजूला थोडी स्पेस, येस तिथेच की कीवर्ड. तरी मग ठीक. येस येस नक्कीच तिथेच केलं तरी चालेल, किंवा मग त्या थिंकरच्या नोटबुक वरती केलं तरी चालेल. येस, यू कॅन राईट. येस, कॉमन नोटबुक. सो आय मेड द 2 डिफरेंट नोटबुक. ओके, आई एक्चुअली इतनी होगी मेरी नोटबुक, एक मैं कल लेके आऊंगा. ठीक है, ऐसे 4 बनाए मैंने और 4 में पूरा सिलेबस बिठा दिया. पेपर 1 कंप्लीट फॉर द इन द 3 नोटबुक. पेपर 1 फॉर द सेक्शन ए 2 नोटबुक एंड सेक्शन बी 1 नोटबुक. ओके, जो इतनी सी डायरी है छोटी. उसके बाद में सेक्शन जो पेपर 2 है वो तो एक ही नोटबुक में बैठ जाता है पूरा. ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिवीजन बहुत हो सकती है, बहुत ज्यादा. इतने बड़े बड़े अगर तुम बुकलेट पढ़ते बैठो, 6-7 बुकलेट होते हैं. ठीक है, कंप्लीटली 2000 प्लस पेजेस, कब पढ़ोगे. ठीक है, और उसके बाद रिवाइज कब करोगे. और इतनी सारी वो बड़ी बुकलेट अगर पढ़ने जाओ तो पढ़ने के टाइम लगता है कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये भूलना जाओ, ये भूलना जाओ. याद रहती है सब कुछ, ठीक है, लेकिन पढ़ते टाइम लगेगा कि कुछ भी नया पढ़ रहे. ऐसे होता है, तो फिर इसीलिए ये चीज है मल्टीपल टाइम रिवीजन. तो इसमें यूजफुल होगा. ठीक है, ये समझ में आया, आगे जाना है. ठीक है, आर्ट और साइंस
ठीक है, तो ये चीजें फिर आपने देख लेना। अभी मेन कंसेप्ट पे आते हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये तो सारा बेस हो गया, यहाँ से अभी एक्चुअल टॉपिक शुरू होगा। व्हाट इज स्टेट? तो बताओ स्टेट क्या है, कौन से एट्रीब्यूट है स्टेट के? यस, पीपल, टेरिटरी, डिफाइन टेरिटरी, और एनी अदर? ग्रेट। क्या इंपॉर्टेंस है सबका? ये पहले थे, सपोज ये एरिया है इन ट्राइबल कम्युनिटी, ये यहाँ पे थे, ये थे। उसके बाद यहाँ पे गवर्नेंस के लिए कोई तो भी चाहिए, नहीं तो क्या हो गया, बारबेरिज्म, कोई किसी की सुनेगा नहीं, ठीक है, ऑर्डर नहीं रहेगा, फिर जस्टिस भी नहीं होगा। ये सारी चीजें अचीव करना है ना, एवरीवन बिकम्स द लीडर। तो फिर कौन किसकी सुनेगा? घर में अगर दो तरीके लोग हो, ठीक है, तो किसी की नहीं सुनी जाती। घर में अगर हायरार्की हो, ठीक है, तो फिर फैमिली ऑर्डर में रहती है ना ऐसे, ठीक है। किसका ऑर्डर चलता है? फादर का मोस्टली। सो फादर इज इक्वेटेड विद द किंग, फादर ही किंग रहते हैं ना मोस्टली इन आवर पैट्रियर्कल सोसाइटी, मेजोरिटरली, ठीक है। तो ये पहली चीज थी, ये था ट्राइबल सोसाइटी। लेकिन उनको गवर्न करने के लिए कुछ तो भी चाहिए, तो गवर्नेंस आ गया, ठीक है, गवर्नेंस आ गया। लेकिन इसी टेरिटरी में जो गवर्नेंस होगा वो किस पे होगा? जो पीपल इसको बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनको कुछ आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, तो आइडेंटिटी क्या है? सिटीजनशिप है, ठीक है। लेकिन ऐसे अभी दो चार स्टेट बन गए, दो चार टेरिटरीज बन गई, तो अभी क्या लगेगा? सॉवरेंटी टू रूल, सही है। तो अभी बताओ सॉवरेंटी क्या है फिर? बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेंटी? वन इज नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, और supremacy of the great supremacy within territory, और कुछ है? हायर अथॉरिटी, ओके, डिसीजन इन द डिसीजन मेकिंग, in the decision making you have the complete independence for the authority। और कुछ बचा? you can take your decision in terms of external relation based on your priority, ठीक है। तो इसको तुम इसको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया स्टेट के बारे में। तो अभी नेशन क्या है फिर?
ये तो स्टेट के एट्रीब्यूट्स हो गए, which defines the state. So what is nation? Nation क्या है? Made of people live in specific territory. Okay. Specific identities of culture. Yes. So specific territory अगर बोला, ठीक है, तो ये हो गया state. So nation is a different thing. ठीक है. So nation. So this is a psychological concept. ठीक है, नेशन. अभी कौन सी आइडेंटिटी? कल्चरल और रिलीजियस और एनी अदर? यस. और कौन कौन सी आइडेंटिटी है? Political identity means you can link it with the citizenship. So citizenship link, ठीक है. Particular और क्या हो सकती है? नेशन तर नाही, पण ही ऍज अ आयडेंटिटी म्हणून यूज करू शकतो आपण. सो इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट, बट फॉर द आयडेंटिटी पर्पज it can be utilized. Okay, so majoritarily this one. Okay, or linguistic identity, racial. Yes, ये वर्ड का इमर्जेंस कहां से? नेशन. यस, ग्रेट. मीनिंग आपने बताया. ओके, सो देयर आर द टू वर्ड्स. और इसका मीनिंग ठीक है, और फिर ये लिंक होता है यहाँ पे. सो इन दिस वे सिटीजनशिप इज लिंकिंग. Excuse me, sir. Yes. Sir, can you please repeat the nations, origin of nations? Origin of the Nations. origin of the nation. Nation first. ये समझ में आ गया सबको? ठीक है. So the meaning of the word nation is the place of the word and it can be linked with the citizenship. ठीक है. So nation का emergence कैसे हुआ? So as first we develop the city state. ठीक है. The city state have the this. ठीक है. Government, they have sovereignty, they have citizen or the people. ठीक है. There is a territory. Okay. So with these attributes, they have actually linked with, ठीक है, oneness feeling, feeling of brotherhood. ठीक है, feeling of commonality. So these things connected the citizen with each other. So when these feelings emerge in a particular individual, feeling of oneness, feeling of brotherhood, then feeling of commonality, then the nation emerges. So do nations require a boundary? ठीक है. कौन से एग्जाम्पल है जो
स्टेट नहीं थे लेकिन नेशन कहे जा सकते उनको। तो डू यू अंडरस्टैंड इन द ऑनलाइन? Yes, sir. Thank you, sir. यस, थैंक यू। कौन सा एग्जाम्पल है? क्या एक स्टेट में मल्टीपल नेशन हो सकते हैं? क्या एक नेशन में मल्टीपल स्टेट? कौन सा सही है? हाँ, एक नेशन में नेशन क्या बताया आपने? ग्रेट, यस, नेशन इज द आइडेंटिटी। सो ये अगर तुम इस तरीके से मत देखो उसको, इंडिया देयर आर द 28 स्टेट्स, ऐसे नहीं, ये कंसेप्ट उसको ब्रॉडर लेवल पे देखो, ये स्टेट आणि स्टेट नहीं, ठीक है? तो ये स्टेट में मल्टीपल नेशंस हो सकते हैं, ठीक है, एक स्टेट में। क्यों? इसका बेस्ट एग्जांपल, यस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट एग्जांपल इज India. In the majority, unity in uniformity, one thing, and second also unity in diversity as well, based on their only language, but majority the culture is same, religion is in the same, ठीक है? So there can be the multiple nation within a particular state boundary, ठीक है? So ऐसे कौन से है, ठीक है, जो स्टेट नहीं है लेकिन नेशन कहे जा सकते हैं? कोई एक हिस्टोरिक एग्जांपल, कोई प्रेजेंट एग्जांपल, कोई बता सकता है? हिस्टोरिकल एग्जांपल तो एक बहुत बढ़िया है, ग्रेट ग्रेट बेस्ट एग्जांपल, who later created, so first they are linked as a nation. Why? Because of identity, through identity or single identity, through single identity they develop the feeling of oneness, then they raise the demand of Israel, and then actually Israel form। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? हाँ, कोई डाउट नहीं? ठीक है, ठीक है। और कोई एक एग्जांपल, द रिसेंट डिमांड, कोई है? They are demanding separate Baloch people. They are demanding separate, ठीक है? So as the Baloch is also another example, so it is a state, and here why? Because of the separate identity. Because of the separate identity, they develop the feeling of oneness, and for through that feeling, they are demanding a particular region so that they can govern themselves. ठीक है? Yes. Yes. We will come over this. तो ये अगला सवाल यही है कि क्या इंडिया नेशन है? इज इंडिया नेशन? क्या है इंडिया नेशन? यस, so it is a debatable issue actually. यस भी है और नो भी है, तो मिडल पाथ है, इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग। तो क्यों कहा जाता है ऐसे? यस, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी present in India, because there are the multiple identities. तो कौन कौन सी आइडेंटिटीज है इंडिया में जो इंडिया को जोड़ के रखती है?
कोई बता सकता है? GS2, अभी ये GS2 ऐसे समझो, यस GS2 और ऐसे है, ऐसे समझना थोड़ा सा। और कॉमन हिस्ट्री, ग्रेट, ज्योग्राफी, और ये ऐसे में लिखने के लिए याद रखो हमेशा, ज्योग्राफी, कल्चर. So there is a difference in the culture, but yes, some culture is actually common one, respecting the elder. So independence, yes. So colonial history. और मुझे इसको बताओ, ज्योग्राफी को थोड़ा सा इलेबोरेट. यस, ग्रेट. सो इसको हमेशा याद रखो, ये ऐसे में अलग पॉइंट है, ठीक है. तो हिमालय, ये एक चीज हो गई. सेकंड, लेकिन ये इतने पार्ट को कवर कर रहा है. और क्या है जो पूरे भारत को कवर करता है? इंडियन ओशन पूरे भारत को कवर करता है. ओके चलो, ये वाला पार्ट पूरे भारत को, एक चीज ऐसे जो पूरे भारत को कनेक्ट करती है. तो दिस इज द ग्रेटेस्ट और बेस्ट एग्जांपल टू राइट हाउ इंडिया इज वन. क्या चीज है जो पूरे भारत को कनेक्ट करती है? जो ग्रेट मॉनसून, ठीक है. सो ये फैक्टर तुम लिख सकते हो, मॉनसून. सो मॉनसून इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, ठीक है, कनेक्टिंग थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है. So yes, India is a nation in making. So sometimes it is called as India is a nation. Sometimes it is called as India is not a nation. India is a nation in making. So for the same purpose, okay, we are trying to promote one thing throughout the India, even through the constitution. Okay, which one thing we are trying to promote to connect India in one identity? Yes, yeah? Yes, Hindi promotion. So it is a debatable issue actually. But we are trying to connect whole India in one language. Huh? It is a more debatable issue. Okay, no. India is a diverse country and we accept it. So secularism, so don't even mention this word or this statement in your essay or anywhere. India adopted a secularism and secularism is also our mention in ठीक है by the basic structure of, ठीक है. और हाँ, जैसे फ्रांस में कुछ तो एक बोर्ड है, अथेइस्ट वगैरह जो रहते हैं, atheist state, religious state and secular state. Okay, religious, those who are having the official religion. Example, great, ठीक है. सेक्युलर लाइक इंडिया, ठीक है. Here equality is one thing. Second, what is the second thing in Indian secularism? Non-discrimination. Okay, non-discrimination, ठीक है. प्रिंसिपल डिस्टेंस नहीं, ये भी नहीं है अच्छे, ठीक है. और
किस चीज के आइडेंटिटी मिल जाते हैं? इट इज अ सेकुलर स्टेट और इट इज अ रिलीजियस स्टेट? ग्रेट. नो. Yes, it is true. Through equality, no official religion of India. So that's why we are equidistant. We are giving the equal protection. ठीक है, ये सारी चीजें, ये हो गया सेक्युलर और रिलीजियस. अभी फ्रांस का एग्जांपल, क्या डिफरेंस है फ्रांस में? कंप्लीटली सेपरेशन. ठीक है, इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन है? नहीं. फ्रांस में है कंप्लीटली. You cannot show your religious identity in the public. ठीक है, कंप्लीट सेपरेशन. ये कहां से आया? तो ये तो बाद में पढ़ने वाले अपन. ये आया मॉडर्न थिंकर. कौन है जिसने कहा था ये स्टेटमेंट? ग्रेट. दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द Machiavelli, who actually separated state and the religion, and that's why the Machiavellian ideas are reflected in the फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह. समझ में आया स्टेट और नेशन का डिफरेंस? ठीक है. वो ये कुछ तो द प्रिंसिपल ऑफ इन फ्रांस, वो वैसे हम लोग ये इंडियन सेक्युलरिज्म के लिए नहीं. फ्रांस के ओके, तो नहीं, उसके बारे में नहीं पता. मैं आपको कल बता सकता हूँ. ठीक है, अभी तो नहीं पता मुझे. इज देयर एनी सेपरेट वर्ड? ठीक है, कोई? So now the question, how the nationhood can we develop in India? कैसे डेवलप करें? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? थ्रू प्रियम्बल में भी है, और यस डीपीएसपी में है, और ड्यूटीज. So it is a duty of the every individual citizen to promote humanism and brotherhood. So this is the feeling of oneness. ठीक है. तो जो कहते हैं कि इंडिया नेशन है, उनका वो कहना क्यों है? क्यों कहते हो? फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ था? यस, पैट्रियटिज्म इंक्रीज हुआ. ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन कब आया? तो ये आपका GS1. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 1857 एंड द गांधीयन फेज एंड द आपका PSR का सेक्शन बी पेपर 1. ठीक है, तो क्या है? यस, पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस. तो मासेस का पार्टिसिपेशन कब बढ़ा? गांधीयन फेज में. तो उसमें क्या हो गया? फीलिंग ऑफ वननेस. दे एक्चुअली, और ये सब प्रमोट किया. जैसे देयर इज अ ड्रॉट ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, इट अफेक्टिंग द अदर एरियाज ऑफ इंडिया. तो इससे क्या हुआ? डिपेंडेंसी. ठीक है, डिपेंडेंसी. सेकंड,
लैंग्वेज, जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा बड़ा बैरियर था टू डेवलप इन द फीलिंग ऑफ वननेस. सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग थ्रू इंग्लिश, railways, posts. So that's why it is said the reforms taken by the Britishers for their development are blessings in disguise for India. Those reforms actually helped India to develop the feeling of oneness, to promote the thoughts, to exchange the thoughts between the political leaders as well as the masses. ठीक है, और ultimately it resulted into the mass movement. ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक है, ऑनलाइन में कोई डाउट? So difference between the nation and the state. So majorly ये सब तो देखा है अपन ने, तो अगर कुछ छूटा भी हो तो देख लेते हैं. ठीक है, तो मेजॉरिटी स्टेट इज अ पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड द नेशन इज अ साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल वगैरह जो भी है. ठीक है, सो ये सारे एट्रीब्यूट स्टेट के 4 एट्रीब्यूट. तो नेशन इज अ फीलिंग ऑफ द वननेस, बॉन्डिंग बिटवीन द पीपल. ठीक है, सो सॉवरेनिटी, सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सॉवरेनिटी इन टर्म्स ऑफ द स्टेट, सो दैट दे कैन वर्क एज अ इन इंडिपेंडेंट मैनर. ठीक है, तो और कुछ है जो रह गया? ये हो गया. ठीक है, नेशन स्टेट हो गया. ठीक है, वेस्टर्न के टाइम नेशनलिज्म का क्राइसिस, थॉट्स और थ्योरी में डिफरेंस देख लिया. ठीक है, हाँ ये चीज. सो ये पॉलिटिकल थॉट जो सिलेबस में भी है वो सिर्फ वेस्टर्न है. ठीक है, उसके बाद में इंडियन है, एंशियंट पीरियड्स है एंड डायरेक्टली मॉडर्न पीरियड्स है. व्हाई नॉट फ्रॉम द मेडिवल पीरियड? या व्हाई? yes, religion. Reason is the religion. ठीक है, so everything in the medieval period are decided through the perspective of the religion. Also between the 5th century AD to 15th century. ठीक है, even in the western year. ठीक है, domination of the Pope, that is the church, the highest authority, Pope. So everything is decided by the Pope, even the execution. But in the ancient there is a freedom. Okay, there is a development of the logic and the reason among the society. Same in the modern period. Modern period, so growth of the reason. ठीक है, reason in terms of the Renaissance, enlightenment. ठीक है, new ideas, new scientific development. This is also related to the industrial revolution. There also declining role of religion. ठीक है, सेम थिंग हैपन इन इंडिया. ये सारी चीजें इंडिया में कब हुई? कब हुआ ये सब? एनलाइटनमेंट, रेनेसांस, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन इन द मॉडर्न पीरियड. 19th सेंचुरी. सर सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सारे लोग. ठीक है, उसके बाद गोखले वगैरह, दादा भाई नौरोजी, ये सारे लोग, दे आर एनलाइटन. ठीक है, एनलाइटन पीपल, रिफॉर्मिस्ट. दे ट्राइड टू प्रमोट रिफॉर्म विद इन द सोसाइटी एंड दे ट्राइड टू द सोशल इविल्स लाइक सती वगैरह. ठीक है, so the reason for not developing the political thought within the medieval period is because of the religion.
डोमिनेशन ऑफ द रिलीजन, और ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में ये देखा था ना कल कि ग्रीस में क्यों डेवलप हुआ, क्यों हुआ डेवलप। एक 2 मिनट का ब्रेक, पानी, 2 मिनट ब्रेक चलेगा। एक मिनट। Okay, so now let's start. So there is one announcement that those who actually taken the admission, or those who actually enrolled for the course, that person only will get the complete notes of the one-page notes, PPTs, and my handwritten notes. Any other? Okay, so we will create one group. ठीक है, और उसके बाद में फिर करंट अफेयर्स का जो क्लास है सैटरडे को, सो उसके नोट्स आपने देखे होंगे, उस टाइप में वो नोट्स रहेंगे, 1 पेज नोट्स। ठीक है, फिर चलो आगे भी क्या देखना, ग्रीक सोसाइटी। सो नाउ वी विल ऑफिशियली स्टार्ट द थिंकर। ठीक है, थिंकर के साथ तो पहले थिंकर पढ़ने से पहले ये तो सब कुछ पढ़ लिया अपन ने, ठीक। एंड द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रीस। ग्रीस वाज इनिशियली अ police means a city state. Okay, city state have a 4 attributes, then later they develop the nationhood, nationalism among them. Why in the Greece? There are the multiple reason. ठीक है, reasons like one is the stability वगैरह, ठीक है, then government in terms of the Greece, democracy was present at that time, not the today's model of the democracy but majority, ठीक है, voting system was there, ठीक है, ये था। उसके बाद में they have somewhat freedom, not the complete one as like today, ठीक है। then trade, because of the trade, exchange of thoughts, ठीक है, thoughts, then exchange of ideas, so that's completely led to the emergence of the reason। ठीक है, ये हो गया ग्रीस के बारे में, जो ग्रीस में इवॉल्व हुआ। ये देखा था उस दिन कि भाई इन द ग्रीस, देखा था, तो वी आर प्रेजेंट। ठीक है, ये देख चुके हैं अपन कि क्यों ग्रीस में क्यों इवॉल्व हुआ था इन द मॉडर्न पीरियड। ठीक है, उसके बाद ग्रीक की सोसाइटी कैसी थी इन द एंशिएंट टाइम। ठीक है, हाउ वाज द ग्रीक सोसाइटी। यस, इट वाज अ डायनास्टी। ठीक है, डायनास्टी तो थी तब उस टाइम, but majority the government type is a democratic one, ठीक है, but not the present democratic form, there is a difference, but voting actually happened। ठीक है, और क्या था कोई बता सकता है ग्रीक सोसाइटी के बारे में। Slaves was the natural thing, even the this ancient thinker suggested the slavery is a natural and the beneficial one, but this can be contradictory to the modern thoughts। Slavery is not a natural thing and it is not the desirable, it is the worst form of the social institution। ठीक है, तो ये और नाही कळलं। There is a division in the society। ठीक है, one complete section is a highly rich or some of the middle class people। ठीक है, feudalism was there, feudalism was present। yes, any other? patriarchy was there। ठीक है, मेजॉरिटी द एग्रीकल्चर सोसाइटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ग्रीक में थी। ठीक है, देयर इज अ डिवीजन इन द सोसाइटी, डोमिनेशन ऑफ द वन ऑफ चर्च,
रिलीजन, तो देयर वाज अ रिलीजन, ठीक है। और हाँ यू याच्यावरती रेटोरिक ना, रेटोरिक नेचर ऑफ द सोफिस्ट, इवन द वी विल कम टू द सोफिस्ट ऑल्सो. Rhetoric, okay, they are misleading people. Misleading. This sophist, okay, sophist desire power and money. So ultimate aim of the life is power and acquisition of the money. So through this rhetoric, their nature, they are misleading people. Okay, misleading to the society that the highest or the best important goal of the life is to achieve power and money. But to counter them, okay, the ancient thoughts actually develop. Sorry, okay, to counter them, ancient thoughts develop, and they said this is not the ultimate aim of the life. Okay, so that we will see in the coming class. ठीक है, so sophist वगैरह, सोसाइटी कैसी थी, ठीक है. So एजुकेशन इन द हैंड्स ऑफ द सोफिस्ट, ओके, जो वेल्दी पीपल रहते हैं. अभी क्या हुआ मॉडर्न टाइम में, तभी लिंक करते हैं इसको. चलो, इन द मॉडर्न टाइम, उस टाइम एजुकेशन किन के हाथ में था, सोफिस्ट के हाथ में. सोफिस्ट के पास क्या थी, पावर एंड सेकंड मनी, मीन्स दे आर द वेल्दी पीपल. ठीक है, वेल्दी पीपल का ही राज रहता है हमेशा. ठीक है, आज के मॉडर्न के टाइम में लिंक करो इसको, मीन्स व्हाट दे एक्चुअली डिड, मटेरियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. तो आज क्या हुआ है, हाँ सेम, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइवेट एजुकेशन. ठीक है, प्राइवेट एजुकेशन में क्या है, सबके नहीं, मटेरियलिज्म rather than वैल्यू सिस्टम. फोकस किस पे है, ड्रेस. ठीक है, बाकी सारी चीजें जो स्कूल में लगने वाली है, बेंचेस, ठीक है, टैब वगैरह, कहीं कहीं प्रोजेक्टर वगैरह, ये सारी चीजें. तो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, दे आर misleading, not everyone, those who are actually making it materialized one. ठीक है, they are the misleading. किस टाइप का एजुकेशन होना चाहिए, कैसे चाहिए एजुकेशन सोसाइटी में, रैशनल, टू प्रमोट द रैशनल थॉट, वैल्यू बेस्ड. ठीक है, साइंटिफिक. ये सारी चीजों का जरूरत है क्या, ठीक है, एकदम से सिर्फ यही चाहिए ऐसा है क्या, ड्रेस नहीं है, आज सैटरडे है, व्हाइट ड्रेस नहीं, आप स्कूल में नहीं बैठ सकते, जरूरत है कि इसकी. ठीक है, इट इज वन ऑफ द गुड थिंग, बट इससे होगा ही, इसके बिना हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं है. लेकिन इसके बिना अगर ये नहीं हुआ तो गड़बड़ी है. यस, वैल्यू सिस्टम, बेस्ट एग्जांपल इन द यूपीएससी लास्ट टू लास्ट ईयर, आईपीएस एग्जांपल वैल्यू सी. ठीक है, ठीक है, वो सर के पास जिनसे मैं भी पढ़ा हूं, तो वहां पे पकड़े गए थे. ठीक है, बता दो बाद में उनकी स्टोरी, इनसे मैं भी पढ़ा हूं, क्योंकि वाजीराम में वो इथिक्स सिखाते थे यार. हाँ, वो इथिक्स सिखाते थे. स्टोरी पता है आपको, ठीक है, नहीं पता, किन किन को पता है, ये एग्जाम्पल पता रखो, इथिक्स में लिखने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है ये यूपीएससी का. इवन yesterday or the day before yesterday, even MPSC caught one student with the Bluetooth and
other devices who is actually the officer, maybe. I'm not sure about his officer or he's in the service or not, but MPSC actually caught that person. ठीक आहे. हा, सो हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा आता. सो एक्झाम्पल काय आहे, हे इथिक्स मध्ये लिहायसाठी आहे तुम्हाला, और एसे में भी. ठीक आहे. व्हॉट इज द एक्झाम्पल? UPSC while writing mains. ठीक है. Caught one aspirant, we can say, who is actually in the service, or he was using Bluetooth. ठीक है. और with camera attached to here that. तो उससे क्या होता था, जो पेपर है सामने ये कैमरा से स्कैन होता था. जो आदमी बैठा था कहीं तो भी रिमोट एरियाज में, उसको ये पूरा पेपर दिख जाता था. उसके बाद में वो ब्लूटूथ से आंसर बता देते. तो जब रिवील हुआ तो ये आईपीएस भी इसी तरह से बना था. ठीक है. उनका नाम आप बाद में ढूंढ लेना. ठीक है. तो ये एग्जांपल याद रखो. इवन इन द attempt when he get the service of the IPS, he did the same thing, and he did for the second time to get the service as. लेकिन पकड़ा गया. उसके बाद में ये तो गए ही, सर भी गए. सर भी वहां पे नहीं, अभी वो जेल में. ठीक है. और ये भी इसको तो ये भी सर्विस तो गई, लेकिन आईएएस तो मिला ही नहीं. ठीक है. ग्रिड. सो दिस कैन यू कैन लिंक दिस विद द ग्रिड. आईपीएस बन गए थे ना भाई. ठीक है. पहले तो करना ही नहीं था, ये तो करना ही नहीं था. और उसके बाद में ग्रिड क्या कर सकता है, देखो. ग्रिड से तुम्हारा आईपीएस तो गया ही गया, जेल में भी गए तुम. ओके. सो हियर यू कैन लिंक द बुद्धिज्म. सो हाउ एक्चुअली ग्रिड affects your Buddhist thoughts. Greed affects your rationality, reason. ठीक है. तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो उसको. चलो आगे. ये चीज के बारे में है, यहाँ पे नहीं है इसका इंपॉर्टेंस इतना. ठीक है. तो ग्रीक सोसाइटी में ऑलरेडी देख लिया. ठीक है. कैसी थी ग्रीक सोसाइटी? पैट्रियार्कल थी, हायरार्की थी, देयर इज अ डिवीजन इन द सोसाइटी. ठीक है. उसके बाद में एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी. ठीक है. देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑफ द सोफिस्ट इन द सोसाइटी हु आर rhetoric in nature. They are misleading to the people. ठीक है. They are showing the different way of life which is desirable one, but actual way of life is different one. ठीक है. ये सारी चीजें थी ग्रीक सोसाइटी में. तो ये है ग्रीस. ठीक है. ये एथेंस. ठीक है. इसके बारे में आपको पता ही है, एथेंस के बारे में. ठीक है. इधर पर्शियन रीजन वगैरह है. तो ये मैप के बाद फिर लिखते हैं. ठीक है. तो ग्रीस में जो डेवलप हुआ वेस्टर्न थॉट, उसके कुछ रीजन थे. ठीक है. क्यों डेवलप हुआ? स्टार्ट किससे हुआ? सॉक्रेट्स थे. ठीक है. तो सॉक्रेट से क्यों हुआ? पहले तो सॉक्रेट से क्यों डेवलप हुआ? ठीक है. कौन था सॉक्रेट? ग्रीक सोसाइटी में उस टाइम हुआ क्या? ठीक है. उसने वो पॉइजन पीना क्यों पसंद किया रादर देन गोइंग अगेंस्ट द स्टेट ऑर्डर? सो ये सारी चीजें अपन अभी देखेंगे. अरे पूरा तो होगा नहीं. ठीक है. चलो. So this is the Greek society. Rationalism was present. ठीक है. Individualistic element. So there was a present of the individualism in the Greece. Importance given to the education, but by the sophist. ठीक है. उसके बाद inequality in terms of the slavery वगैरह. ठीक है. So society is naturally unequal in terms of the strength. ठीक है. वो भी उन्होंने कहा था in terms of the knowledge. Or yes, in terms of the gender based inequality was also present.
ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो जैसे सोसाइटी है, थॉट्स क्या रहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तुम्हारा अपब्रिंगिंग तुम्हारे थॉट्स डेवलप करता है। तुम्हारा एटीट्यूड कहाँ से डेवलप होता है, तुम्हारे पापा ने क्या किया, मम्मी ने क्या सिखाया, स्कूल में क्या सिखाया, कौन से टाइप के एनवायरमेंट में तुम रह रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है तुम्हारे थॉट्स को। दैट मीन्स योर सोसाइटी कंप्लीटली इन्फ्लुएंसेस योर थॉट। सो इन द सेम वे ग्रीक सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस द सोक्रेट्स थॉट, प्लेटोस थॉट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फिर सिटीजनशिप पे भी वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी ग्रीक सोसाइटी के बारे में। मेडिवलिस्ट का तो हो गया, ठीक है। तो ये 3 लोग आपको पता ही चाहिए, ये इनके गुरु यानी क्या, टीचर, ठीक है, ये इनके टीचर, और ये टीचर है अलेक्जेंडर के, ठीक है, ये ऐसी हायरार्की है, ठीक है। अभी अपन एक्चुअल फिलोसोफर्स देखने वाले, जो तुम्हारा सिलेबस अभी स्टार्ट हो गया है समझो, ठीक है। सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, दीज आर द 3 पीपल। तो अभी क्या होगा, जो इनका माइंडसेट था, ठीक है, तो इन पे रिफ्लेक्ट होगा कुछ तो भी, ठीक है, इनका इन पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, देयर इज सम रिफ्लेक्शन ऑफ देयर थॉट्स, ओके। और क्या हो सकता है, तो फिर जो थॉट्स इनको पसंद नहीं आए तो ये क्या करेंगे, इनको क्रिटिसाइज, तो नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड योर एक्सप्लेनेशन, सेम ये इनको क्रिटिसाइज करेंगे जो थॉट्स उनको पसंद नहीं आए, ठीक है। तो ऐसे ये मूव होने वाला है, और ये तीनों आपको याद रखनी है, क्योंकि जब अगर तुमको प्लेटो लिखना हो तो प्लेटो लिखते समय सोक्रेट्स नहीं लिखा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस किसका था, प्लेटो पे सोक्रेटिस का, ठीक है। उसके बाद में आपको एरिस्टोटल अगर लिखना हो, ठीक है, तो इनको नहीं लिखा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, इनको भी नहीं लिखा तो हो ही नहीं सकता। तो इनको लिखने के वक्त आप याद रखो कि इन दोनों को तो मेंशन करना ही है इंट्रोडक्शन में कहीं तो भी, इनिशियल फेज में, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखो। और इन तीनों को तो भूले ही मत, क्योंकि ये मॉडर्न में भी लगने वाले हैं, ठीक है, इवन आईआर में भी लगने वाले हैं, ठीक है। इनको लिखना है, इसी तरीके से लिंक करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, ठीक है। तो अभी ये है हमारे सोक्रेटिस, ठीक है, इनको अच्छे से देख लो और याद रखो, ठीक है। तो अभी जो डेवलपमेंट हुआ प्री सोक्रेटिक एरा, वो क्या था, ठीक है, क्यों उनके बाद में फिर किसी चीज को तो सोक्रेटिस ने भी क्रिटिसाइज किया होगा ना, देन ओनली हिज थॉट्स एक्चुअली इमर्ज, ठीक है। तो क्या होगा पहली बात, यस, तो सोफिस्ट, तो ग्रीक सोसाइटी जो थी, ठीक है, तो प्री सोक्रेटिक एरा, ठीक है, एक तो थे प्रेजेंस ऑफ द सोफिस्ट, दूसरा रिलीजन वगैरह, ठीक है, तो उसको जितना क्रिटिसाइज नहीं किया सोक्रेटिस ने, ठीक है, वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं किया। तो इनइक्वालिटी, इवन सोक्रेटिस जस्टिफाइज द इनइक्वालिटी, प्रेजेंस ऑफ द सेवरी, ठीक है। सोक्रेटिस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज पे था, आइडियलिज्म, ठीक है। इसके पहले सब लोग क्या करते थे, ठीक है, व्हाट वाज द मोटो ऑफ एजुकेशन, मटेरियलिस्ट तो था ही, तो मटेरियलिस्ट में सब क्या ढूंढने में बिजी थे, एयर, वाटर, ठीक है, ये सारी चीजें, इसमें R&D, तो एवरीवन इज इन्वॉल्व इन फाइंडिंग द रीजन ऑफ द एयर, water, sun, they consider these things as their god, okay, natural gods present in that time,
ठीक है, नेचुरल गॉड प्रेजेंट इन दैट टाइम, ये सारी चीजें। सोक्रेटिस का क्या कहना था, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्या कह सकते हैं सोक्रेटिस, ये सारी चीजें होगी प्री ग्रीक सोसाइटी, ठीक है, सोक्रेटिस के पहले, ठीक है, ये सारी चीजें को इंपॉर्टेंट दे रही थी ग्रीक सोसाइटी, नोइंग अबाउट दिस नेचुरल थिंग्स, सन के बारे में, एयर के बारे में, वाटर के बारे में, ठीक है। लेकिन सोक्रेटिस का कहना था कि क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, ये यहाँ पे लिंक होगा ना, आइडियलिज्म। सोक्रेटिस में था कि ये चीजें नहीं, ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, तुमको पहले लाइफ के बारे में पता चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द आइडियल कंडीशन, ठीक है, व्हाट इज द सोक्रेटिस का कहना था कि व्हाट इज द आइडियल लाइफ क्या है, ठीक है, लाइफ के बारे में सोचो, मटेरियल के बारे में मत सोचो, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ गुड लाइफ, ठीक है, गुड लाइफ कैसे अचीव होगी रादर देन मटेरियलिस्टिक वन, इसके पीछे मत भागो। आईएएस क्यों बनना है, सबको आईएएस क्यों बनना है, किस किस चीज के लिए आईएएस बनना है, पावर, प्रेस्टीज, मनी, स्टेबिलिटी, ठीक है, रिवेंज, ये सारी चीजें है ना, दिमाग में तो है ही सबके, ठीक है। लेकिन सोक्रेटिस क्या कर रहा है कि ये सारा चीजें कौन बताएगा, सोफिस्ट। तुमको आईएएस क्यों बनना है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये सारी चीजें बाहर बोलने के लिए, ये चीज इंटरव्यू में बोलने के लिए, ठीक है, याद रखो, इंटरव्यू में यही बोलना है, ये बताना है कि इंटरव्यू में नहीं बताना है, नहीं बताना है, बताओगे या नहीं बताओगे, ये चीज इंटरव्यू में नहीं बताओगे, बताना है, यू हैव टू टेल। अगर ये चीजें नहीं रहेगी तो जाएंगे ही क्यों ना, अगर तुमने सिर्फ ये बताया इंटरव्यू में कि आई वांट टू ज्वाइन आईएएस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, देन विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन टू डू दिस, तो भाई फिर आईएएस क्यों बनने आगे, आईएएस क्यों बनना ना, आईपीएस क्यों बनना, आईपीएस ठीक है छोड़ो, आईएफएस बन के क्या वेलफेयर लाओगे पीपल में, पीपल से तो कांटेक्ट ही नहीं है, ठीक है, पोस्टल सर्विस में क्या लाओगे, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो पोस्ट कार्ड, ठीक है, उसके बाद प्राइजेस कम, जल्दी भेजोगे, स्पीड पोस्ट, ये चीजें, पीपल से ज्यादा कांटेक्ट है, ये चीजें बतानी है, ये चीजें, दीज आर द इंपॉर्टेंट वन, बट कहा प्रायोरिटी में लास्ट में, आई वांट टू ज्वाइन द सर्विस फॉर दिस पर्पस, बट एट द सेम टाइम ये क्या हो गया, यही चीज बतानी है मुझे, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द एंशिएंट थॉट, दिस इज द आइडियल, एंड ये क्या है, यस, तो प्रैक्टिकल अल्टीमेटली होना ही होना है, तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, याद रखो, इसको बताना ही बताना है, विद दिस आई एम गेटिंग ऑल दीज थिंग्स, सो इसको प्रायोरिटी में लगाओ, ये मत लगाओ, ये नहीं बताना है, ठीक है, ये सारी चीजें, सो आई विल गेट द पावर, बट आई विल यूटिलाइज दैट पावर फॉर द वेलफेयर of the people, not for the self gain. I will get the prestige, through that I will motivate others to join the service, ठीक है, this thing money, this gives the stability to me, so that stability will not emerge, will not provoke the emergence of the greed, so no corruption, so this is the interview answer, ठीक है। तो
ये सारी चीजें ग्रीक सोसाइटी में भी थी। ठीक है, तो सोक्रेटिस कह रहे थे कि ये सोफिस्ट है, ये प्रैक्टिकल ज्यादा बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा बात करना नहीं, आइडियलिज्म में रहो थोड़ा। ठीक है, आइडियल सोसाइटी देखो, गुड लाइफ देखो, अच्छा जीवन जगो। ठीक है, ये सारी चीजें सोक्रेटिस कह रहे थे उस टाइम। ठीक है, तो ये देखो अभी। ठीक है, तो बिफोर द सोक्रेटिस दे आर द फिजिसिस्ट, मेजॉरिटीली दे आर डिवोटेड देयर लाइफ टुवर्ड्स नोइंग द these things, एयर वाटर सन वगैरह, ये इमर्ज क्यों हो रहा है वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, फिजिक्स, बीजिंग नोइंग द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाद में सोक्रेटिस ने क्या कहा कि these are not the important thing, what is the purpose of the life is the not the elements of life but should be emphasized over the what consists the good life। ठीक है, that is the purpose of the life। ठीक है, not the physics। तो ये सारी चीजें जो सोक्रेटिस के दिमाग में आई। ठीक है, तो आने की कुछ वजह तो होगी, तो ये नहीं ऐसी थोड़ी आई होगी दिमाग में, कुछ वजह होगी ना। सोक्रेटिस में ये सारी चीजें दिमाग में आने के लिए कुछ वजह होगी। सोक्रेटिस का टाइम पीरियड पता है किसी को? तो याद रखो, थोड़ा सा ये है, डिबेटेबल है कि यही है या नहीं, लेकिन है। सो दिस मेक्स अ डिफरेंस इन योर आंसर। सो मैंने टॉपर्स के जब आंसर देखे तब उन्होंने आंसर में जब भी कोई थिंकर लिखा तो हाउ यू कैन गेट द एक्स्ट्रा हाफ मार्क, हाफ मार्क कैसे ऐड करना इस चीज से। सो दे रोट द टाइम पीरियड in the bracket after their name, so this is one thing। second, they wrote their publications, books के नाम, this is the second thing। तो याद रखो। ठीक है, टाइम पीरियड ये थोड़ा सा डिबेटेबल है कि यही है नहीं है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही दिया है थोड़ा सा, क्योंकि वहां के रिकॉर्ड नहीं है उतने क्लियर। सो सोक्रेटिस का ये थांबायचंय की काय? कंटिन्यू एक 5-10 मिनिटं सॉक्रेटिस कोण होता, कसा आला तेवढं बघूयात, देन वी विल स्टॉप। ओके, यस, सो दिस इज द टाइम पीरियड, दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ डिफरेंस। सो सॉक्रेटिस जो था वो मिडिल क्लास सोसाइटी में, ठीक है, मिडिल क्लास में था, उसका जन्म मिडिल क्लास सोसाइटी। ठीक है, वो वर्क क्या करता था? स्टोन मैंशन, ये सारी चीजें फैमिली बिजनेस। तो स्टोन मैंशनिंग अबाउट द फैमिली बिजनेस ऑफ द सॉक्रेटिस। सो ही वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द फैमिली बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देन Socrates joined as a foot soldier in the Athenian army। ठीक है, तो बहुत सारे जो वॉर्स थे उस टाइम। ठीक है, तो वॉर्स के टाइम में सोक्रेटिस वाज द आर्मी मैन। ठीक है, ही वाज इन्वॉल्व इन एज अ फुट सोल्जर इन द आर्मी एंड ही वर्कड एज अ मिलिट्री मैन विच वाज विक्टोरियस वन। बट उस टाइम में एक वॉर हुआ, पेलोपोनेशियन वॉर। किसको किसको पता है इसके बारे में? कब हुआ था, कितने साल तक चला था, पता है किसी को? पता है किसी के बारे में? तो इट वाज 300 मूवी देखिए बस, 300 सबको पता है ना, ऐसे समझो उसका 300 इसी का है रिफ्लेक्शन। ठीक है, वही इसका एंड है। स्पार्टा वर्सेस एथेंस। ठीक है, ये सारी चीजें, इसको मॉडर्न से कैसे लिंक करें? यूएस वर्सेस चाइना, या अभी का चाइना, पहले रशिया। ठीक है, यही चीजें होती थी। अभी क्या है, पहले क्या था? स्पार्टा का कौन सा ग्रुप था? एक स्पार्टा ने क्या किया था? स्पार्टा क्रिएटेड
group, that is league, named Peloponnesian League. And Athens created a Delian League. ये लीग क्या थी? In the every league there are 150 plus city state involved. ठीक है, और उनका मकसद क्या था? To get the domination over region around Greece. ठीक है, अभी के मॉडर्न टाइम में अगर देखें तो सेम थिंग वी कैन लिंक टू द मॉडर्न वॉर फॉर द हेजिमनी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. ओके, पैसिफिक रीजन. ठीक है, उसके बाद इंडियन ओशन रीजन, रीजनल हेजिमनी. द सेम थिंग एक्चुअली हैपेंड इन द अगेंस्ट स्पार्टा वर्सेस एथेंस, बिटवीन द ग्रीस वर्सेस, ठीक है, पर्शियन हेजिमनी. ठीक है, हु इज बेटर वन, हु इज द ग्रेटेस्ट वन. ठीक है, तो स्पार्टा ने बनाया था पेलोपोनेशियन लीग, जिसने इन्होंने बनाया था डेलियन लीग, एथेंस ने. सो सोक्रेटिस वाज द पार्ट ऑफ द डेलियन लीग. तो अभी ये वॉर चला लगभग 30 इयर्स. ठीक है, वैसे तो 60-70 साल चला पूरा वॉर, लेकिन मेजोरिटी वॉर स्टार्टेड फ्रॉम द 431 BC to 404 BC. ठीक है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. हु इज द थ्योरी ऑफ कौटिल्य. कौटिल्य का थ्योरी क्या है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. तो सेम थिंग हैपेंड इन द पेलोपोनेशियन वॉर. ठीक है, द Persian regime helped Sparta against Athens. ठीक है, same way China utilized Pakistan against India. How you can link the ancient to the modern time. ठीक है, ये चीज है. तो ये पेलोपोनेशियन वॉर चला 30 years के लिए चला. 404 में अल्टीमेटली स्पार्टा विक्टोरियस हुआ. ठीक है, स्पार्टा की विक्ट्री हो गई थी पेलोपोनेशियन वॉर में. स्पार्टा को हेल्प किया था पर्शियन ने, लेकिन एक टाइम ऐसे आया था, ठीक है, जहां पे एथेंस जो था ये विक्टोरियस होने वाला था और ऑलमोस्ट हो भी गया था. ठीक है, लेकिन एथेंस की क्या थी? एक नेवी थी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी. इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली स्पार्टा डिफीटेड दैट नेवी. एंड ओके, क्योंकि वहां पे वो विक्ट्री करके बाहर आ रहे थे. ठीक है, तो देयर वाज अ 6 कमांडर्स एक्चुअली लीडिंग दैट नेवी व्हेन दे एक्चुअली गॉट विक्टोरियस. ठीक है, उसके बाद में देयर वाज अ जोर से तूफान आया और ये डिस्ट्रक्ट हो गया पूरा नेवी. So there was a trial against these 6 commanders and the democratic institution. उन्होंने क्या किया? ये 6 कमांडर के अगेंस्ट में ट्रायल चालू किया. ठीक है, उसके बाद में इनको सजा भी हो गई. एट द सेम थिंग एंड इन द सेम वे सोक्रेटिस को भी सजा हुई थी. तो किसी के ऊपर ब्लेम डालना है ना, किसी के ऊपर ब्लेम डालना पड़ेगा. ठीक है, सो लॉस ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर actually resulted into the development of the Socrates idea. ठीक है, तो ये क्या आइडियाज थी, कैसी इमर्ज आई, ठीक है, कैसी इमर्ज हुई, ये सब कल देखेंगे. चलेगा? थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी. ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच. कल से फिर सोक्रेटिस शुरू हो जाएगा. चलो.